ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਜਿਤ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਣੇ की मजबूर हो चुके हैं। हालांकि ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ नो पार्किंग जोन च इस वेले खड़ोती हुई हैं, लेकिन मजबूरी कारण जो तो सामने दिखा दे भी नो पार्किंग एरियाज ने, लेकिन लोग मजबूर हो चुके हैं कि ये लोगों को और कोई थार जी नहीं रह चुकी दी है और लोग लगातार इस चीज की लिए ना तराई करी जा रहे हैं और ऑनलाइन चलान जो इन लोगों की जो नो पार्किंग जोन च खड़ोने के जो लगातार हो आ रहे हैं। लेकिन ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਪਰ ਪਵਾਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਲੈਣੇ ਆਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਚੀ ਪਾਣ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਿਆਸਤ। न्यूज़ 18 ਦੇ ਖਾਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਰਐਸਪੁਰਾ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਇੰਦਰਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝੀਲ ਦੇ ਬਣੀ ਚੁੱਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਈ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ उनकी ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਏ ਕਰਦੀ ਹਨ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਈ ਸਕੇ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਥਾनीय ਲੋਕ ਹਨ, उनके कने ਗੱਲਬਾत करते हैं कि किन्नी परेशानी इस वक्त उनकी आया करती है। जी मैम ਕੀ ਨਾਮ? नमस्कार जी, मेरा नाम आशा शर्मा है ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਦੇਖੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੰਨੇ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਦਾ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇੱਕ ਗੁੜੀਆ ਮੇਰੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਇੰਨਾ ਮੱਛਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦੋਨੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਸਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਟਾਈਫਾਇਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਤਨਾ ਮੱਛਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਤਨੀ ਬਦਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ, मतलब कि ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਰਾਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਲੇਕਿਨ ਸਮੈਲ मतलब कि ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਛਰ ਇਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਚਨ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਡੇਂਗੂ ਇੰਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਤਨਾ ਮੱਛਰ, ਇਤਨੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬਦਬੂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ कैसे लोग हैं, कितने रहते हैं, किस तरह अपना मतलब कि बच्चे इतने पालते हैं इतनी गंदगी विच। ਅਸੀਂ इतने अमीर ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਇਥੋਂ ਵੇਚੀਏ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਈਏ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, बड़ी बार ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, जिले आपू आते हैं तो आपू बड़े दूर होकर खड़े होकर देख के चले जाते हैं जी यहाँ तो बड़ी स्मैल है, यहाँ तो पानी है, आगे कैसे जाए। तो कदे ये सोचा ਅਸੀਂ वोट दे के सरकार बनाते हैं, ਸਰਕਾਰ ਜਿਲੇ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਘਰ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ मतलब ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗਾਉਂ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ 5 ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਉੱਪਰ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਇਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪੂ ਜਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਣ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਣ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪੂ ਇਹਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪੂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖ ਲੈਣ ਔਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਬਰਸਾਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। लॉर्ड गौर और चैतन्य के राम कीर्तन शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा स्क्वायर मंदिर से शुरू होकर मुख्तलिफ बाजारों से होती हुई मंदिर के अहाते में ही खत्म हुई। पुंछ में वार्ड नंबर 13 महला शीश महल के रहायशी रिटायर्ड सूबेदार मुश्ताक हुसैन के घर में चोरी की वारदात पेश आई। मुश्ताक का पूरा खानदान अपने आबाई गांव गया हुआ था। ले में लामा लोबजिंग का पूरे सरकारी एजाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हिल काउंसिल के सदर एडवोकेट ताशी ग्यालसन समेत दीगर जानी मानी हस्तियों ने आखिरी रस्मात में शिरकत की। अनंतनाग के जलडोरा लारीपुर की पोरा में इलाके में एक तेंदुए की मौजूदगी के बाद पूरे इलाके में खौफ और दहशत का माहौल है। लोगों की जानिब से वाइल्ड लाइफ महकमे को फौरी इसकी इत्तला दी गई। बड़ी मुशक्कतों के बाद तेंदुए को काबू कर लिया गया।
आरएसपुरा राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव प्रचार तेज कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से गांव बनोटा में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। कश्मीरी पंडित साहित्यिक संगठन नागरे लिटरेरी फोरम ने जम्मू में एक भक्तिपूर्ण मुशायरे का आयोजन किया। इस बहुभाषी मुशायरे में कई कवियों ने भाग लिया। साबिक वज़ीर शहीद शेख अब्दुल जब्बार की 34वीं बरसी 17 अप्रैल को बड़े पैमाने पर बनाई जाएगी। इस बात का ऐलान जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर और साबिक एमएलए गांदरबल शेख अशफाक जब्बार ने किया। पुंछ के गांव मंगनाड में एक जंगली सुअर के हमले में 4 ग्रामीण घायल हो गए, जिन्हें राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू पुलिस ने होली की पूर्व संध्या पर ऑपरेशन चीयर्स के तहत सार्वजनिक शराब की खपत के खिलाफ अपना अभियान जारी रखा है। संबंधित धाराओं के तहत 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। श्रीनगर के नौपुरा में लगी भीषण आग की चपेट में कई इमारतें शामिल। जेएनवी खुम्बाथांग करगिल में स्वास्थ्य शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांकू करगिल की ओर से लगाया गया था स्वास्थ्य शिविर। भाजपा ने जारी की 5वीं लिस्ट। चुनावी रण में राम की एंट्री। मेरठ से अरुण गोविल तो मंडी से कंगना लड़ेंगी चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट जारी की है। मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी कंगना रनौत। वहीं बीजेपी की 5वीं लिस्ट में हिमाचल से एक और नाम शामिल। कांगड़ा से राजीव भारद्वाज को मिला टिकट। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी राब्ता कमेटी के रुकन रामलाल ठाकुर ने बड़ा दावा किया है। रामलाल ठाकुर ने कहा है कि रियासत में पैदा होने वाली सियासी सूरत-ए-हाल के दरमियान तकरीबन 10 से 12 साबिक वज़रा बशमूल बीजेपी के साबिक वज़ीर रामलाल मार्कंडे और दीगर सीनियर लीडर कांग्रेस में शामिल होने के लिए उनसे राब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि वो इस सिलसिले में रियासती कांग्रेस सदर, सीएम, कौमी सदर और सोनिया गांधी को इसकी जानकारी देंगे। नाहन में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के 6 बागी विधायकों और भाजपा नेताओं के पुतले फूंके और भाजपा हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि च्यवनप्राश, बेशकीमती जड़ी बूटियों से बना विश्व का सर्वश्रेष्ठ च्यवनप्राश। श्रीनगर के नौपुरा में बीती शब आतिशज़दगी आग से 4 मकानों को पहुंचा नुकसान। फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर पाया काबू। बेरोजगारी, रियासत के दर्जे की बहाली और तरक्की जैसे मसाइल पर लड़ेंगे इलेक्शन। जम्मू से कांग्रेस के उम्मीदवार रमन भल्ला का बयान। कहा बीजेपी की नाकामियों पर वोटर देंगे इंतखाबात में मुंहतोड़ जवाब। पीडीपी नहीं हुई खत्म, इलेक्शन में मिलेगा सबको जवाब। पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। श्रीनगर में पार्टी के नौजवान कारकुनों से खिताब। कहा नौजवानों में बड़ी तादाद में हो रहे हैं पीडीपी में शामिल। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की भूख हड़ताल जारी। एपेक्स बॉडी ले और केडीए के मुतालबात के हक में एहतजाज। सोनम वांगचुक के साथ इजहार यकजहती। केडीए मेंबरान, काउंसलर्स, मजहबी रहनुमा, नौजवान, सियासी और समाजी कारकुन शामिल। रंगों के त्योहार होली की धूम। लोग एक दूसरे को लगा रहे हैं रंग और अबीर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दी होली की मुबारकबाद। करगिल में नौजवानों ने स्कीइंग कोर्स के इख्तिताम पर मनाया जश्न। मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 30 से ज्यादा शुरका ने पेश किया जोशो खरोश का मुजाहिरा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि च्यवनप्राश, बेशकीमती जड़ी बूटियों से बना विश्व का सर्वश्रेष्ठ च्यवनप्राश। स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे खबर है जम्मू कश्मीर के टनमर्ग से। टनमर्ग कंसर से बड़ी खबर है। मंगलारा गांव में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया है। कई रिहायशी मकान खाकस्तर हो गए हैं। जी हां, ये खबर है टनमर्ग कंसर से बड़ी खबर। मंगलारा गांव में आतिशज़दगी का वाकया, कई रिहायशी मकान हुए खाकस्तर। आग के सबब लाखों की मालियत का हुआ नुकसान। आग से कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है और आग पर आखिरकार काबू पा लिया गया है। तो ये खबर आप देख रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज टनमर्ग से है। टनमर्ग कंजर से बड़ी खबर है। मंगलारा गांव में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया है। कई रिहायशी मकान खाकस्तर हो गए हैं, यानी कई रिहायशी मकान जलकर तबाह हो गए हैं।
आग के सबब लाखों रुपए की मालियत का नुकसान बताया जा रहा है। आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग पर काबू पा लिया गया है। और वहीं श्रीनगर के नौपुरा इलाके में बीते शब आतिशबाजी का वाकया पेश आया। आग की वजह से 4 मकानों को नुकसान पहुंचा। गली में बिजली के खंभे और गंजलक तार होने की वजह से फायर ब्रिगेड अमले को आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत उठानी पड़ी। स्टेट कंट्रोल रूम जो कि बटमालू में है, वहां पे इतला मिली कि 10:05 पे नौपुरा एरिया में आग की वारदात हुई है। Instantly, we mobilized different fire tenders, including the headquarter. As we reached the spot, we saw a double-storied structure was involved in fire. The initial impressions are the cause of fire is LPG leakage, but we have to wait for the final investigation. Other than that, the firefighters have fought tooth and nail. They have done a tremendous job, and we have been quite successful in confining and restricting the fire to the involved property. इसमें mainly एक structure involved था, लेकिन instantly वो दूसरे जो surrounding structures थे उनका थोड़ा partial damage हुआ है, लेकिन टाइमली एक्शन, स्विफ्ट एक्शन के कारण ही जो आग है वी आर क्वाइट सक्सेसफुल इन रेस्ट्रिक्टिंग इट। फायर इज टोटली अंडर कंट्रोल नाउ। द कूलिंग ऑपरेशन इज अंडरवे एंड वी हैव टू आई गेस वी हैव टू वेट फॉर 10-15 मिनट्स मोर सो दैट फायर इज टोटली एक्सटिंग्विश्ड। और आज होली है। होली की धूम हर तरफ देखी जा रही है। वहीं जम्मू में भी होली धूमधाम से मनाई जा रही है। लोग होली के रंगों में रंगे नजर आ रहे हैं। शहर चाहे कोई भी हो, माहौल एक जैसा ही नजर आ रहा है। रंग अबीर लोगों के चेहरे पर लगे हुए नजर आ रहे हैं। लोग अपनी रंजिश भूलकर एक दूसरे को होली की मुबारकबाद दे रहे हैं। होली पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ साथ मरकजी वजीर और उधमपुर से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने होली की मुबारकबाद दी है। और बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर ने बमहामा बडगाम में होली मनाई। आईजी बीएसएफ अशोक यादव ने कहा कि बीएसएफ पर किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सर्दियों के बाद बर्फबारी की वजह से कई जगहों पर बाढ़ को नुकसान पहुंचा है और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए वो जल्द अज जल्द नुकसान की मरम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन आने वाले हैं, ऐसे में दरअंदाजी की कोशिशें जारी हैं। वो मुल्क के अमन में खलल डालना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि जवान काफी चौकस हैं। उन्होंने कहा कि किसी को दरअंदाजी नहीं करने दी जाएगी। होने वाले हैं बॉर्डर पर बीएसएफ क्या कुछ मतलब सिक्योरिटी के लिए कर रही है, किस तरह से आप इकदाम कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस फिराक में रहते हैं कि जो यहाँ पर पीसफुल एटमॉस्फेयर है उसको तबाह किया जाए। तो बीएसएफ किस तरह से उन चीजों का ख्याल रख रही है और किस तरह से बॉर्डर में मजीद सिक्योरिटी बढ़ा रही है? जी देखिए, इलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट होता है हमारी कंट्री में, और जब भी इम्पोर्टेंट इवेंट होता है दूसरी पार से कोशिश होती है कि उसको कुछ डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाए, लेकिन हम लोग आर्मी के साथ फुल्ली प्रिपेयर्ड है। हमारी कुछ स्पेशलाइज्ड टीम हमने ट्रेन की अभी इस दौरान, जो इंश्योर करेंगे कि हमारा सिक्योरिटी ग्रिड और स्ट्रॉन्ग रहे इलेक्शन के टाइम में, और इंश्योर करेंगे किसी भी इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट हो तो हम उसको नाकामयाब कर सकें। हिंटरलैंड में भी हमारी कुछ कंपनीज लगी हुई है जो जेकेपी के सपोर्ट में इंश्योर करेगी हिंटरलैंड में भी कोई इस तरह के इंसिडेंट ना हो। बिल्कुल सर, क्योंकि रिसेंटली आपने कुपवारा में 2 ऑपरेशन चलाए थे, एक नार्को टेररिज्म उसको उस बिट को या तबाह किया था, और दूसरा ह्यूज आर्म्स एंड एम्युनिशन आपने रिकवर किए थे। सर उसके बारे में जानना चाहेंगे किस तरह के ऑपरेशन वो थे? जी, ये लगातार हमारी कोशिश रहती है कि हमारा जो इंटेलिजेंस सेटअप है बीएसएफ का, वो हमको बहुत अच्छी इनपुट्स दे और उसके बेस पे हम ऑपरेशन प्लान करते हैं आर्मी और जेकेपी के साथ मिलके। और अभी आपने देखा हमारे 2 सक्सेसफुल ऑपरेशंस हुए हैं कुपवाड़ा में, जिसमें एक आर्म्स एम्युनिशन की खेप और एक सीजर ऑफ नार्कोटिक्स। सो इस तरह की कोशिश हमारी लगातार जारी रहती है और ये आने वाले दिनों में आप और इस तरह के ऑपरेशन देखेंगे। बिल्कुल सर, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो हमेशा रहती होगी, क्या कुछ ताज़ा इंटेलिजेंस है, किस तरह की सिचुएशन बॉर्डर पर है? जी, जैसा कि हमारी एनालिसिस है, कुछ लोग जैसा कि रहता ही है कि लॉन्चिंग पैड पे तैयार हैं, वो मौके देख रहे हैं कि कब उनको थोड़ा सिक्योरिटी ग्रिड में गैप लगे तो कोशिश करें।
लेकिन हम अच्छे तरीके से तैयार हैं उसके लिए। बिल्कुल, क्योंकि आईजी बीएसएफ से हमने बात की, उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर बीएसएफ हमेशा तैयार है। बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए बीएसएफ हर तरह का इकदाम कर रही है और किसी भी तरह की नापाक हरकत को नाकाम बनाने में वो हर वक्त तैयार रहते हैं। आफाक शाह के साथ आबिद हुसैन, न्यूज 18, हुमामा बडगाम। और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने लेह में फौजियों के साथ रंगों का त्यौहार होली मनाया। राजनाथ सिंह ने जवानों की बहादुरी, आज़म और कुर्बानी की तारीफ की, क्योंकि वो मादरे वतन की हिफाजत के लिए सख्त और नासाजगार मौसमी हालात में खिदमत अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा कि ऊंचाई पर तैनात फौजियों का मुस्बत अज़्म मनफी दर्जे हरारत से कहीं ज्यादा मजबूत है। पहाड़ों की गोद में पहाड़ों के जैसे ही अड़े होकर आप जिस तरह से देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी को नमन करता हूं। साथियों, भारत की यह उत्तरी धरती, लद्दाख की धरती, यह कोई सामान्य धरती नहीं है। यह सियाचिन की धरती है, यह कारगिल की धरती है, यह लेह की धरती है, यह गलवान की धरती है और यह भारत माता की धरती है। और भारत माता का चमकता हुआ यह मुकुट है। यह भारतीय राष्ट्रीय संप्रभुता और दृढ़ता का भी एक मूर्त प्रतीक है। यह हमारे नेशनल डिटर्मिनेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। हम जानते हैं कि हमारी राजनीतिक राजधानी दिल्ली है और आर्थिक राजधानी हमारी मुंबई है और हमारा टेक्नोलॉजी कैपिटल बेंगलुरु है। जिस तरह से ये सभी जगहें अलग अलग राजधानियों को रिप्रेजेंट करती हैं, उसी तरह लद्दाख हमारे भारतीयों की वीरता और शौर्य की यह राजधानी है। मैं भारत के सभी परिवारों के प्रेम का रंग लिए आपके बीच यहाँ पर मौजूद हूँ। आप भले ही मुझे एक रक्षा मंत्री के रूप में यहाँ देख रहे होंगे, लेकिन मैं एक रक्षा मंत्री के रूप में नहीं बल्कि अपने एक स्वजन के रूप में होली के दिन अपने परिवार वालों से मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं देशवासियों की होली की शुभकामनाओं के साथ साथ आपके लिए उनका आशीर्वाद भी लेकर आया हूँ। साथियों, आप लोगों के फौलादी और बुलंद हौसलों के घेरों के बीच हमारा पूरा देश खुद को पूरी तरह से महफूज पाता है। हमारे देश की एक लंबी सीमा है। इन सीमावर्ती क्षेत्रों से कभी कभार चिंताजनक खबरें भी आती हैं। इन खबरों के बावजूद आपको मालूम है कि आपका देश एक खुशहाल भरी जिंदगी जी रहा है और लगातार यह हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और बदलते जम्मू कश्मीर की एक और निशानी देखने को मिली। अलहदगी पसंद लीडर मरहूम सैयद अली शाह गिलानी की नवासी रोरा अल्ताफ को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अवामी दरबार की तकरीब में देखा गया। रोरा दीगर आम कश्मीरियों की तरह डीजीपी आर स्वैन से मिलने के लिए कतार में खड़ी थी, ताकि पुलिस सरबराह के साथ अपने मसाइल और खदशात पर तबादला ख्याल किया जा सके। चंद दिन पहले रोरा ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया था। इसमें उन्होंने अपने नाना के नजरिए को मुस्तरद कर दिया था और यूनियन ऑफ इंडिया के साथ वफादारी का हलफ लिया था। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूलवानी ने दावा किया है कि उनके दोनों उम्मीदवार जम्मू से रमन भल्ला और उधमपुर से चौधरी लाल सिंह आने वाले लोकसभा इंतखाबात में जीत दर्ज करेंगे। वकार रसूलवानी ने कहा कि जम्मू और उधमपुर के लोग बीजेपी से तंग आ चुके हैं। वानी ने कहा कि बीजेपी के दोनों मेंबरान पार्लियामेंट लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम रहे। उन्होंने तीसरे महाज के लीडरों को बीजेपी का एजेंट करार देते हुए इन पर भी तनकीद की। रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से हम ये सीट जीतेंगे। हालांकि हमको मुकाबला बीजेपी के दो कैंडिडेट्स के साथ है। एक तो बीजेपी का डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कभी पब्लिक में आपको नजर नहीं आया, जो कभी 10-10 साल में भी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं गया, किसी का काम नहीं किया, किसी से मिला नहीं। दूसरी साइड डीपीएपी आजाद साहब की पार्टी का कैंडिडेट, जो डायरेक्ट बीजेपी की तरफ से उठाया गया है वोट काटने के लिए। हालांकि उसका
कंप्लीट अलायंस अभी कश्मीर में हो रहा है बीजेपी के साथ, और यहां भी जम्मू में भी कहीं ना कहीं वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। वहां भी उसकी कोशिश है कि सेकुलर वोट वो काटे ताकि बीजेपी जीते। तो मुझे यकीन है दोनों को हम शिकस्त फाश, जबरदस्त शिकस्त देके उनको आइंदा उठने के काबिल नहीं रखेंगे। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का तोड़ निकालने के लिए ये पार्टियां क्रिएट की गई। इन पार्टियों की सारी फंडिंग जो है आरएसएस, बीजेपी से हो रही है। इन लोगों को जगह जगह सिक्योरिटी, जगह जगह दफ्तर, इनके लोगों को क्वार्टर, इनका पैसा, इनकी रैलियों में जो 10-10, 20-20 लाख रुपए खर्चा आता है, जैसे गुलाम नबी आजाद एक डिस्ट्रिक्ट में रैली करता है, तमाम डिस्ट्रिक्ट की कॉन्स्टिट्यूंसियों से बसें लगाता है, 50-50 लाख खर्च करता है, वो सारा बीजेपी से। अभी जो हमने सुना डीपीएपी के कैंडिडेट को 10 करोड़ रुपया आया है बीजेपी से इलेक्शन लड़ने के लिए, कांग्रेस को हराने के लिए, लेकिन ये सारा लोगों के पास, ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं, पूरा एक्सपोज हो चुके हैं। और फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। केमिकल्स हटाइए। उम्मीदवार रमन भल्ला सहित कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता इस जनसभा में शामिल हुए। कश्मीरी पंडित साहित्यिक संगठन नागरे लिटरेरी फोरम ने जम्मू में एक भक्तिपूर्ण मुशायरे का आयोजन किया। इस बहुभाषी मुशायरे में कई कवियों ने भाग लिया। साबिक वज़ीर शहीद शेख अब्दुल जब्बार की 34वीं बरसी 17 अप्रैल को बड़े पैमाने पर बनाई जाएगी। इस बात का ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पर पीडीपी के नौजवान कारकुनों की मीटिंग मुनक्किद हुई। पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने नौजवान कारकुनों से खिताब किया और उन्हें आइंदा लोकसभा इलेक्शन के लिए तैयार रहने पर जोर दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नौजवान बड़ी तादाद में पीडीपी में शामिल हो रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि लोग इस बार पीडीपी को एक मौका देंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि पीडीपी खत्म हो गई है, वो समझ लें कि पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में अवाम इन्हें दिखाएंगे कि पीडीपी कहां खड़ी है। आवाज मिल सारी मसला मगर दम यम सात सली मे निश जबान सोन गुरूर जबान क्या ज्यादा तुम कर रोक पे जबान योत थाप दिन जमीन जागन नौकरियत जागन दस्तारस जागन मगर जबान कम से कम पानस निश अगर कत करो यह आज हमने यूथ की मीटिंग बुलाई थी और बेचारे इस रोजे के वक्त में फाके फुकरे यहाँ तक पहुंची, अपना किराया दिया। इससे मेरी हिम्मत बढ़ती है क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है इन लोगों के सिवा। ये जो हमारे खासकर जवान बच्चे जो हमारे साथ हैं, बुजुर्गों की दुआ है हमारे साथ, तो तसल्ली हो जाती है जब लोग ये कहते हैं कि पीडीपी खत्म हो गई है, पीडीपी का कहीं नामो निशान नहीं है। तो जब ये लोग आते हैं मेरे पास और अपना दिल का हाल सुनाते हैं, मेरी बात सुनते हैं, तो मेरी हिम्मत बन जाती है। तो उसी सिलसिले में आज हमने जहाँ ज्यादा नहीं कोई 300-400 लड़के हमने बुलाए थे और अच्छा लगा इनसे बात करके। और सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने तमाम सेकुलर ताकतों से हाथ मिलाने की अपील की है ताकि बीजेपी को इक़्तिदार में वापस आने से रोका जाए। वो जम्मू में न्यूज 18 के साथ बात कर रहे थे। तारिगामी ने इतलाफ किया कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात लड़ने में इंडिया ब्लॉक के कुछ हलकों की नाकामी एक सेटबैक है। उन्होंने इस सेटबैक को आर्जी करार दिया। यूसुफ तारिगामी ने तीसरे महाज के रहनुमाओं पर भी तनकीद की और कहा कि उनका जम्मू कश्मीर के लिए कोई विजन नहीं है। जम्मू कश्मीर में सियासी उथल पुथल जारी और इसी बीच एक नया महाज इसी हफ्ते जो नेक्स्ट वीक है उसमें बनने जा रहा है, जिसमें गुलाम नबी आजाद, अल्ताफ बुखारी और सज्जाद लोन और कई और जैसे मुजफ्फर बेग भी उसमें शामिल हो सकते हैं। नया महाज, और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की बैकिंग उसको है। और क्योंकि बीजेपी, ऐसा चर्चाएं हैं कि बीजेपी तकरीबन 2 सीटों पे तो चुनाव नहीं लड़ेगी, बारामूला और श्रीनगर, उस पे वो इसी महाज को सपोर्ट करेगी। क्या ये महाज जो पहले वाला महाज था उसको रिप्लेस करेगा?
और क्या पहला वाला जो महाज बना था बीजेपी के खिलाफ इंडिया ब्लॉक में या उससे पहले पीएचडी, क्या वो फेल हो चुका है और उसी का रिप्लेसमेंट ये है? मेरे से बात करने के लिए हैं सीपीएम के वरिष्ठ नेता, और जो इस सारी एक्सरसाइज जो इंडिया ब्लॉक या उससे पहले जो महाज बना था उसमें एक पेशरफ उन्होंने की थी, उनका एक बड़ा रोल था। कि जहां तक अभी इस महाज के बारे में आपने जिक्र किया, अभी अफवाहें हैं, अभी चर्चा है, कुछ देर इंतजार कर लीजिए, फिर मुलाकात होगी हमारे बीच में कि कैसे इवाल्व होता है, एजेंडा क्या है, कौन किसकी हिमायत करता है। हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी भी है और अपना अधिकार भी है कि वो अपना लाहे अमल तय कर ले, एक। और दूसरा जो आपने ये कहा, क्या जो अभी ये नई सरगर्मी शुरू हुई है, क्या ये नाकामी का इजहार है जो पहले कोशिश रही हमारी तरफ से पीएचडी बनाने की, इंडिया ब्लॉक जो मुल्की सतह पर बनने जा रहा है या बन रहा है? मैं सिर्फ एक गुजारिश कर लूंगा, आप तजुर्बाकार हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस में उतार चढ़ाव आना कुदरती है। हमारा समाज और हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क होने के नाते जाना जाता है। अब भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। कल जब वोटर के पास आप जाओगे, जब वोटर देखेगा कि मुझे अलग अलग इनको चुनाव मतलब वोट देना है, मेरे पास वो भी है, आपको नहीं लगता है सेक्युलर वोट बढ़ जाएगा, आपको नुकसान होगा? मैं एक गुजारिश कर लूंगा, आपका खदशा अपनी जगह सही है, लेकिन इस खदशे का तदारुक होना चाहिए। आपने मुलाकात की थी, आपने एफर्ट की थी, आप और जो आपके मुजफ्फर शाह साहब है उन्होंने भी एफर्ट की थी, आपको नहीं लगता आप नाकाम हो गए उसमें? नहीं, नाकामी मैंने वो सबक भी पढ़ा नहीं, मैंने बहुत बड़े सपने देखे हैं और आज तक लगातार उस रास्ते पर हूँ, दाएं बाएं गया नहीं मैं। तो ये जो नया फ्रंट बनने वाला है जिसमें गुलाम नबी आजाद, आपको लगता है ये बीजेपी के कहने पे? मैं क्यों कहूँ अभी ऐसा, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ जो फतवा देगा। इंतजार कर लीजिए, जायजा लेंगे, उनका एजेंडा क्या है, उनके इश्यूज क्या है, उनकी करनी खुद बताएगी वो कहाँ खड़े। खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी अलग अलग राह पे चल पड़े हैं, लेकिन इनको उम्मीद है कि आगे की डगर अच्छी होगी और साथ मिलकर सभी यहाँ पे जो पार्टियां हैं वो चलेंगी, सेक्युलर पार्टी, ताकि बीजेपी को यहाँ पे पावर में आने से रोका जा सके। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और जम्मू लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रमन भल्ला ने दावा किया है कि बीजेपी जम्मू खित्ते की दोनों लोकसभा सीटों से हार जाएगी। बावे वाली माता का आशीर्वाद लेने के लिए बाबू किले के इलाके का दौरा करने के मौके पर रमन भल्ला ने कहा कि वो बेरोजगारी, रियासत के दर्जे की बहाली और तरक्की जैसे मसाइल पर इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी आवाम की उमंगों को पूरा करने में नाकाम रही है, इसलिए इंतखाबात में वोटर बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमें लगता है कि पार्टी ने जो भरोसा दिखाया और जनता उस भरोसे पे पूरा उतरेगी, यहाँ पे इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। जिन्होंने जम्मू कश्मीर को एक प्ले ग्राउंड समझा था और हर एक लेबोरेटरी समझते हुए टेस्ट यहाँ पे किए, लेकिन जनता को जख्म दिए। आज वक्त आएगा कि अब दोबारा चुनाव का डेमोक्रेसी को अच्छे स्तर पे ले जाना जरूरी है, लेकिन जम्मू कश्मीर का अवाम जो है इससे दुखी है कि असेंबली के चुनाव नहीं है, हमारी रियासत का दर्जा हमसे छीना गया, जमहूरियत ग्रास रूट लेवल पे नहीं है, लेकिन मौका फराहम किया कि हम लोगों की आवाज को अच्छे ढंग से बुलंद करेंगे और हमें लगता है कि भाजपा को यहाँ कोई करारी हार का सामना करना। और जम्मू कश्मीर में काले कवानीन का निफाज नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। इन बातों का इजहार पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन ने किया। सज्जाद लोन ने कहा कि पार्लियामेंट में उनके जाने का मकसद काले कवानीन के खात्मे के लिए आवाज बुलंद करना और इज्जत और वकार के साथ तामीर और तरक्की को यकीनी बनाना है। और पिछले 30 साल पहले जो लुटाया है इन्होंने, इंशाल्लाह वो लाकर आपके कदमों के नीचे रखेंगे। ये मेरा बात। अकु तमक में सुजू तूर तत कर तकरीर सुबह तक वजीर आजमस तक वजीर नुमजे बाकी पार्लियामेंट मेंबर सोरे हिंदुस्तान तक वन पन दिल तक कि तुम क्या करो अस चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी अस क्या गो तक वन बह दपा मे वो सानो बचो क्या कोर्मुत तुम दिव ना माफी उमन
कब तक चलेगा? मेरे पास रोज कोई ना कोई बच्चा आता, मेरा तो पासपोर्ट, मेरे पास रोज कोई ना कोई बच्चा आता, मेरा एनओसी मांगा पुलिस एनओसी दिमाग। ये कानून क्या कि अगर मोबाइल गुनाह कोर्मुत सजा दिमो बच्चस, अगर बचन गुनाह कोर्मुत सजा दिमो मोबाइलस, अगर बॉय गुनाह कोर्मुत सजा दिमो बॉयस। अगर गुजरातस मं, अगर हरियाणा मं, अगर तमिलनाडु मं कानून का प्रॉब्लम, मगर अगर ये कानून सिर्फ और सिर्फ कैश बचस के, तो हमको वहां आवाज उठानी पड़ेगी और आवाज हम उठाएंगे, इंशाल्लाह वहां उठाएंगे। और आपको बताया कि लेह में सोनम वांगचुक मुसलसल उपवास पर हैं। उन्होंने एपेक्स बॉडी लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के 4 नुकाती एजेंडे की तायद करने के लिए 21 दिनों का उपवास रखा है। वहीं उनकी तायद में फौज से रिटायर हुए सूबेदार सेरिंग स्टेम्बारे भी उपवास वो भी कर रहे हैं। इस दौरान रेबल फाउंडेशन के श्रद्धानंद पति ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की। और न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मुझे इस तरीके से मौका दिया गया आप बताने का। तो अभी थोड़ा मेरे भी ऐसे महसूस हो रहा है कि अभी 19 दिन में मेरे शरीर में थोड़ा सा कमजोरी आना जैसे लग रहे हैं। तो बाकी आज 19 दिन हो गया, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक जो हमारा भारत सरकार जो है, अभी तक भारत सरकार के कान तक हमारा खबर नहीं पहुंचा है। अभी यहाँ पे हजारों के हिसाब से अभी रोज जो जनता बढ़ते जा रहे हैं यहाँ अनशन के लिए। तो इतना ठंड और इतना -14 में यहाँ इस तरीके से जो भारत सरकार हम फेंक के रखे हैं, तो इसलिए हमें बहुत दुखी, बहुत आक्रोश है, पूरा जनता को आक्रोश है। इसीलिए मैं अपील करता हूं कि जल्द से जल्द ये हल करें और ऐसे इस तरीके से चलते रहेगा तो भारत हमारा जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र बिल्कुल खत्म ही होने जा रहा है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके से भूखा 19 दिन फेंक के रखे। फिर भी सोनम वांगचुक सर तो भारत लद्दाख का नहीं, भारत लेवल पर नहीं, पूरा दुनिया लेवल पर, विश्व लेवल का एक साइंटिस्ट और एजुकेटेड है। तो विश्व लेवल पर इसको पूछता जाता है कि भारत सरकार के कान में अभी तक क्यों नहीं पहुंच रहा। इसीलिए बिल्कुल हमें हैरान है भारत नागरिक होते और होने के नाते। लद्दाख में महकमा सयाहत करगिल लद्दाख स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन के ताउन से लिंकपाल करगिल में 10 रोजा स्कीइंग कोर्स का खिताब का जश्न मनाया गया। लद्दाख के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लड़कों और लड़कियों समेत 30 से ज्यादा शुरका ने पूरे प्रोग्राम में नुमाया पेशरफ्त और जोश व खरोश का मुजाहरा किया। करगिल के डिप्टी कमिश्नर श्रीकांत सौसे थे इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इस तरह के इक़दाम के लिए जिला इंतजामिया की हौसला अफजाई की। मेहमान खुसूसी असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म ने शुरका की कामयाबियों को सराहा। तकरीब के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को कोर्स में इनकी शानदार खिदमात पर इनामात से नवाजा गया। को मद्देनजर रखते हुए जो वोटर एजुकेशन के लिए काफ़ी प्रोग्राम्स हमने लिए हैं। जैसे आप सबको पता है कि जो हमारे यंग वोटर्स हैं उनके लिए कॉलेजेस में हमने स्पेशल इवेंट कर रहे हैं। हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, गवर्नमेंट ऑफिस है, वहाँ पे भी इथिकल वोटिंग को एक मैसेज देने के लिए हमने वोटर अवेयरनेस फोरम्स के माध्यम से इवेंट्स अभी किए जा रहे हैं। और आगे जाके हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम हर एक पंचायत, हर एक पोलिंग बूथ को हम टच करेंगे। वहाँ पे ईवीएम वीवीपैट के जो भी प्रोसीजर होता है उसकी सेफ्टी फीचर्स है और इथिकल वोटिंग के बारे में हम मैसेज के लिए बहुत सारे इवेंट्स हमारे अभी प्रपोज है। इस आने वाले मंथ में इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। आज भी हमने स्कीइंग का कोर्स टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया, उसके साथ हमने एक स्वीप का मैसेज भी दिया है। बहुत सारे यंग वोटर्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनको मेरी तरफ से एज ए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर अपील है कि 20 मई को जो हमारा पोलिंग डेट है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जो हमारा चुनाव का त्यौहार है उसमें पार्टिसिपेट करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है असगर अली और मैं उम्बा से बिलोंग करता हूँ और इसमें 2024 का मैं फर्स्ट वोटर हूँ और 2024 के फर्स्ट वोटर से यही बोलना चाहता हूँ कि अपने फर्स्ट वोट अपने देश के लिए दे और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाए। और पानी के रंगों और कैट एलिमेंट से मुसव्वरी की दुनिया में नाम कमाने वाले मशहूर कश्मीरी आर्टिस्ट नीरज बख्शी मिस्र के दौरे पर हैं। अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाले नीरज बख्शी मिस्र में कश्मीरी और मिस्री मैथोलॉजी एलिमेंट्स पर काम करेंगे। नीरज बख्शी का कहना है कि वो तकरीबन 1 माह तक मिस्र में रहेंगे। नीरज बख्शी ने इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में न्यूज 18 से खास बातचीत की। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 जे के लिए